रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने गांधी हॉस्पिटल में एक लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर एक्साइज टी श्रीनिवास गौड़ और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के साथ एक इजलास में उन्होंने वाक़े का जायजा भी लिया। कबल अजी वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और सुप्रिटेंडेंट राजा राव से मुलाकात की। उन्होंने वाक़े के बारे में जानकारी भी हासिल की। बताया जाता है कि दवाखाने के लैब टेक्नीशियन उमा महेश्वर राव और उसके साथी ने रमनगर की रहने वाली 2 बहनों की असमत रेजी की, जो अपनी बीमार वालदा की तीमारदारी के लिए दवाखाने को आई थी। पुलिस सुलकलगोड़ा ने बताया कि इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। माबकी अफराद की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। रियासत के बरतरफशुदा वजीर और बीजेपी के लीडर इटला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलितों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। जिमीकुंटा में एक जलसे से खिताब करते हुए जहां चीफ मिनिस्टर ने 16 अगस्त को दलित बंधु स्कीम का आगाज किया था, राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत कितनी ही ऐसी नई स्कीमों को लॉन्च करे, हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में उनकी कामयाबी यकीनी है क्योंकि अवाम उन पर एतमाद करते हैं। उन्होंने हुजूराबाद की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। साबिक वजीर इटला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 38 साल से MLA, रियासती वजीर, MP, मरकजी वजीर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी दलितों की बात नहीं की। లోపల మాకు ఆందోళన ఉండే ఇది అమలు కాదని, కానీ వాళ్ళందరూ అప్పుడు 1,00,000 కుటుంబాలకు ఇచ్చినా జీవితం ధన్యమైందని చెప్పిండు కేసీఆర్ గారు. ఇచ్చినదా 1,00,000 కుటుంబాలకు? మీ లెక్కల ప్రకారంగా ఈ రాష్ట్రంలో 20 లక్షల పైబడి దత్త కుటుంబాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక 5 లక్షల మంది ఉన్నలో లేకపోతే ఉద్యోగులు తీసేస్తే 15 లక్షల మంది, 15 లక్షల ఎకరాలు, 45 లక్షల ఎకరాలు, 45 లక్షల ఎకరాలు భూమి కొనిచ్చే సత్తా ఉంటుందా కేసీఆర్కి? ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం సాగు అయ్యే భూమి, ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం సాగు అయ్యే భూమి 1,20 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే. అంటే సగం ప్రజానికం భూమిని అమ్ముకొని గవర్నమెంట్కి ఇస్తే ఇవాళ దత్త జాతికి భూములు వస్తాయని చెప్పి నమ్ముతారా? ఎవరన్నా నమ్ముతారా? ఇవ్వు హామీ, కానీ అమలేటి అమలు కాని హామీ ఇవ్వకు. ఎందుకంటే నాకు గుర్తొస్తుంది, రాజులు కోటల మీద దాడి ఒక రాజు ఇంకొక రాజు మీద దాడి చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తారు, కోటగోడలు ఉంటాయి. కోటగోడలు దాదాపు 30 ఫీట్లు, 40 ఫీట్లు, 50 ఫీట్ల కోటగోడలు ఉంటాయి. ఆ కోటగోడల పక్కకు పెద్ద కందకాలు తవ్వి, ఒక 2 కోడలు 3 కోడల కందకాలు తవ్వి, అది దాదాపు మనిషి కూడా దొరికినంత విత్తు పెట్టి. डायरेक्टर मुकम्मल सेठ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने दावा किया कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर भी खत्म हो चुकी है। ताहम मौसमी अमराज का सिलसिला चल रहा है और हुकूमत इससे निपटने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 1,65,00,000 अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। इनमें से 56% पहला डोज ले चुके हैं, जबकि 34% दोनों डोज ले चुके हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि GCMC हदूद में 90% लोग कोविड-19 के टीकों का पहला डोज ले चुके हैं। మీరు దయచేసి మీ సొంత వైద్యము లేదా మీ గూగుల్ వైద్యాన్ని నమ్ముకోకుండా మీరు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బాగుంటుంది. అలాగనే జ్వరం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, తలాకళ్ళు తిరగటం కానివ్వండి, వాంతులు చేసుకున్నప్పుడు కానివ్వండి, బాగా నీరసంగా అంటే ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదకరమైన సైన్స్ అని చెప్పి మీరు అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి టైంలో ఎప్పుడు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ లో కోవిడ్కి ఎలా అయితే అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసిందో, ఈ రోజు డెంగీకి సంబంధించి కూడా అలాంటి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం కొంచెం కేసెస్ పెరగడం మనం చూస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ డెంగీ కేసు, అది కూడా అర్బన్ ప్రాంతాల్లో. ఇవన్నీ కూడా లార్జర్ డెన్సిటీ పాపులేషన్ సిటీస్ కాబట్టి వీటన్నిటి కూడా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రజలు మీరు దయచేసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్లేసేసి మీ జేబులు గుల్ల చేసుకునే కంటే దయచేసి మీరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ రండి, పూర్తి ఉచితంగా వైద్యం పొందండి. అన్ని రకాలుగా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెకండ్ వేవ్ పూర్తిగా ముగిసిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా అదుపులో ఉంది. అలా అని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం పూర్తి అప్రమత్తం ఉంది. ఇప్పటి వరకు సుమారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,65,32,270 వ్యాక్సినేషన్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగనే మన టార్గెటెడ్ పాపులేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చింది 2,20,37,645 మంది ఉంటే
సుమారు 56% మంది పాపులేషన్ని అంటే 1,23,10,190 మందిని మొదటి డోస్తోని కవర్, సెకండ్ డోస్ కూడా సుమారు 36% మనం కవర్ చేసుకున్నాం. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మనం తీసుకుంటే సుమారు 85-90% పైగా ప్రజలు పాక్షికంగా కానీ. रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिलों के लिए मुनक्किदा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। आज जारी करदा नतायज के मुताबिक लड़कियों की कामयाबी का फीसद 95.93 रहा, जबकि लड़कों का फीसद 94.85 रहा। JNTUC के वाइस चांसलर के नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि जुमला 23,667 उम्मीदवारों ने एमसेट के इम्तिहानात में शिरकत की थी। इनमें 22,522 कामयाब और इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के अहल खराब पाए। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त से दाखिलों के लिए काउंसलिंग का आगाज होगा। मलकाजगिरी में टीआरएस के रुकन असम्बली एम हनुमंतराव के हामियों की जानिब से बीजेपी के कारपोरेटर पर हमले के वाक़े की नायब सदरनशीन कौमी एससी कमीशन अरुण हलदार MP ने मजम्मत की। उन्होंने दवाखाने में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस में शिकायत करने और मुकदमा दर्ज करने के बाद भी हाथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत SC/ST तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में नाकाम हो गई है। देखिए, कल ये जघन्य घटना का जब कमीशन में नज़र में आया है और इधर का संगठन का तरफ से अनुसूचित जाति वर्ग के समाज के लोग जब कल जाके मिला कमीशन में और इस घटना सुना है हम लोग, तो तुरंत हम लोग इस घटना कार्रवाई करने के लिए, एक घटना का सरजमीन देखने के लिए माननीय चेयरमैन साहब का निर्देश में मैं इधर आया है। अभी पीड़ित अनुसूचित जाति वर्गों का महिलाओं के साथ हम लोग मिला है और उनसे जो बात मैंने सुना है, बहुत शर्मात्मक घटना है। मैं सोच नहीं पा रहा है जो आज का 21वीं शताब्दी में भी इस तरीके का घटना घट सकता है। कि समाज की पीड़ित समाज के लोगों के साथ जिसका ऊपर जिम्मेदारी है इसको रक्षा करने का, वही लोग इस बुरी तरफ से इस लोगों को बेइज्जती किया, बड़ा स्टेशन किया, उनको पिटाया और उसके बाद जब पुलिस का द्वारस्थ हुआ है, पुलिस ने कोई FIR नहीं लिया, कोई FIR नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है। मैं सोच नहीं पाया, कुछ दिन पहले मैंने तेलंगाना में आया है, प्रशासन के साथ बहुत अच्छा तरह कमीशन से बात किया है। मैंने भी सोच नहीं सका कि इस प्रशासन इस टाइप से व्यवहार कर सकता है। अभी मैं जाऊंगा, प्रशासन का अधिकारी का DGP सबको बुलाया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और क्या क्या एक्शन लेना अभी बाकी है, सारे एक्शन लेने के लिए कमीशन की तरफ से हम लोग व्यवस्था करेंगे और उसके बाद मैं इधर से निकलेंगे। जमीयत अहले हदीस के सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ उमरी ने सेक्रेटरीट की शहीद 2 मसाजिद की दोबारा तामीर से मुतालिक रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरीट की मसाजिद को लेकर मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है और हुकूमत को उसके संग बुनियाद की तारीख का तयन करते हुए इस बेचैनी को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मसाजिद के नक्शे और दीगर तफसीलात से शहर के उलमा और अकाबरीन को एक इजलास में वाकिफ करवाया, जो कि एक अच्छा अमल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना और जनरल सेक्रेटरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद। कहना यह है कि 16 अगस्त 2021 को वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने हज हाउस पर मुख्तलिफ दीनी फलाही जमातों को मदऊ किया था। सेक्रेटरीट की 2 मिस्मार शुदा मसाजिद की ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की और वहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मसाजिद की तामीर के सिलसिले में हमें तयक़ुन देते हुए प्रोजेक्ट पर CM साहब का जो प्लान है वो भी जिक्र किया और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे अक़लियत दोस्त चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और उसके लिए उन्होंने 2.6 करोड़ की लागत का भी ऐलान किया।
तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक खुशखबरी भी है। और मज़ीद इस पर यह कि उन्होंने 800 गज ज़मीन पर जो 2 मसाजिद थी उसको बढ़ाते हुए उन्होंने 1500 गज ज़मीन का ऐलान भी किया है। चूँकि मस्जिद अल्लाह का घर है और मुसलमानों की इबादतगाह है, इसलिए उस मकाम पर मस्जिद का बनना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस तयक़ुन पर के सलीम साहब ने ये तयक़ुन भी दिया कि सीएम साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है और काफ़ी उन्होंने इसको दिलचस्पी लेकर सीरियस लेकर जो है उसको तामीर करने का ऐलान भी कर दिया है। हम इस सिलसिले में जमीयत की तरफ से, चूँकि अल्लाह के घर की तामीर के सिलसिले में तमाम दीनी मजहबी जमातों के साथ हमने इसका भी ऐलान किया है कि उस मकाम पर जो मस्जिद तामीर होगी तो हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने ऐलान किया है, मंजूरी दी है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और जल्द से जल्द उस मकामात पर अल्लाह के घर को तामीर करें। इसमें हम सब की जो है बेहतरी है ताकि सेकुलर का मकाम भी बाकी रहे और मुसलमान जो है जो कई दिनों से तकलीफ में हैं, परेशान हैं और गुस्से में हैं, उनका गुस्सा भी ख़त्म हो और अल्लाह का घर जहाँ मौजूद था उन 2 मकामात पर असरनो नई मस्जिद तामीर हो जाए, आलीशान मस्जिद बने, वहाँ पर इबादतें हों और अल्लाह के घर को जो है उसी मकाम पर बनना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब के वादे को वो पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। असंभल हल्के गोशामाइल के इलाके चूड़ी बाजार में संघर्ष समाज की तरफ से कोविड-19 के वैक्सीन की टीके अंदाजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नायब सदर सिटी कांग्रेस कमेटी श्याम सिंह, संघर्ष समाज के सदर जनक राम ने इस मरकज का मुआयना किया और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की डॉक्टर स्वप्ना और नर्स सोमालता की खिदमत की सिताइश की। इस मौके पर कैलाश सिंह, छोटेलाल और मनोज सिंह वगैरह भी मौजूद थे। समगर जाति संघ की ओर से हमारे नौजवान साथियों ने मिलकर जो है आज समगर भवन के अंदर जो कोरोना चल रहा है उसका वैक्सीन जो है यानी इंजेक्शन सभी माँ बहनों को और पुरुषों को दिला रहे हैं और एक सोशल काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। जगह जगह पूरे हमारे वार्ड के अंदर हर तरफ जो है सबको दिया जा रहा है और बहुत ही खूबी के साथ जो है लोग अपना इसको आराम से ले रहे हैं और गरीबों को जो है भी सेवा करना है वो कर रहे हैं। और नौजवानों से मेरी ख्वाहिश है जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात हैं गरीबों तक पहुंचाने का पूरा जो है प्रयत्न करें और मैं उनसे यही आशा करता हूं। जय हिंद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो हिंदुस्तानी हनुस काबुल में फंसे हुए हैं उनमें मंचियाल का एक माइग्रेंट लेबर बमुन्ना राजन्ना भी शामिल है। काबुल से एयर इंडिया की परवाजों की मौजूदगी के सबब वो वापस नहीं हो सका। राजन्ना के अरकान खानदान ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो मंचियाल के इस लेबर की बहिफाजत और आजिलाना वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। राजन्ना की बीवी वसंता और बेटी रामायण ने बताया कि वो 7 अगस्त को ही काबुल गया था जहां वो गुज़िश्ता 8 बरस से एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहा था। वसंता ने बताया कि उसके शौहर की कंपनी ने उसके टिकट का इंतज़ाम भी किया है लेकिन परवाज़ें मौजूद होने की वजह से वो वापस नहीं हो सका। इसका एक और साथी वेंकन्ना भी, इसका ताल्लुक ज़िले करीमनगर से है, काबुल में ही फंसा हुआ है। पुलिस ने अतापुर राजेंद्र नगर में एक नाबालिग लड़की की शादी को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि एक 16 साल लड़की की खानदान वाले उसकी जबरन शादी करवा रहे थे। पुलिस ने शादी खाने पर धावा किया और लड़की को बचाकर रेस्क्यू होम रवाना कर दिया। ఏం లేదు సార్, మాకు మా ఆయన బాగలేక మొన్న అంటే ఒక 6 నెలల కింద చాలా ప్రాబ్లం అయింది. ప్రాబ్లం అయితే 3 లక్షలు పెట్టి లేపుకున్న ఆయన చనిపోయిన ఆయన ఇక ఒక్కొళ్ళని ఆయనకు అట్లా అవుతుందని చేసేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. ఎంతమంది పిల్లలు? 3 ఆడపిల్లలు, ఒక బాబు. చిన్నగా ఉన్నారు 2 వాళ్ళు. ఈమె ఎన్నో ఆమె? రెండో ఆమె. మొదట ఆమె పెళ్లి అయిపోయింది. ఇంకా వీళ్ళు చిన్నగా ఉన్నారు కదా, ఇది ఎప్పుడేమైతే తెలియదని పాపకు పెళ్లి చేస్తామని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మొదటి భార్యనా రెండో భార్య? నేను రెండో భార్య. మొదటి భార్యకి ఎంతమంది పిల్లలు? ఆమెకు 2 ఈమెకు 2 సార్. ఈమెకు ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ, ఆమెకు 2 ఆడబిడ్డలు. అలా అయిపోయినాయి ఇద్దరు? ఒక్క ఆమెది అయింది, పెద్ద ఆమెది అయింది, పెద్ద బిడ్డది అయింది. ఇక సెకండ్ నడిపి బిడ్డ అయింది. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు? రాని. ఈ అమ్మాయికి చేసేస్తే ఇక నాకు కూడా చాలా కష్టం. వాళ్ళకి ఏదో బుక్కెడికి కష్టం చేసుకొని తింటారా అని గిట్లా అని చేస్తున్నా కానీ ఇట్లా చేస్తారని నాకు అసలు తెలియదు సార్.
हैदराबाद के इलाके कारवान के मोहम्मद सोहेल खां को पुणे में वाक़े मुल्क के बावखार तालीमी इदारे महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है। सोहेल खां ने 10वीं जमात में 100% निशानात हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की थी। इस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 2 साल के अखराजात तकरीबन 42 लाख रुपए होते हैं और सोहेल खां को 100% स्कॉलरशिप मिली है। उन्होंने अपनी इस कामयाबी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उनकी मजीद कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल ख़ान है। मैं ग्रेस मॉडल स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल जो है 10th मुकम्मल कर चुका हूँ और 10th मुकम्मल करते करते मैं UWC यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज जो पुणे में है उसके लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। मेरा जो इल्मी सफ़र है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंटरेस्टिंग है और बहुत जो है ज़बरदस्त है। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे मेरे 12 साल जो है ग्रेस मॉडल में बिताया हूँ। जो मेरे वहाँ पर के जो प्रिंसिपल्स है, स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। 2017 में मेरे वालिद मरहूम का जब इंतकाल हुआ तो मेरे माशी हालात जो है बहुत लो थे, तो स्कूल के ज़िम्मेदारान ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी ली और मेरे पढ़ाई का पूरा जो है ख़र्चा वो लोग किए। उसके बाद दूसरी जो बहुत अहम किरदार जिसने अपनाया वो है टीच फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो कि हर उसमें जो फेलोज़ होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। उनका यही मकसद होता है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मुकाम और अच्छे स्टेटस पे आएँ और वो लिटरेट रहें और अच्छा कुछ अपनी ज़िंदगी में करें। तो यही मकसद से उन लोगों ने मुझे बहुत प्रिपेयर किया, बहुत सपोर्ट किया। जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आए मेरे वे में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपॉर्चुनिटीज़ को मैं जो है ग्रास्प कर सका, पूरों को ले सका और अपना मैं जो है बेस्ट देने की कोशिश किया। अभी बहुत चीज़ें आई, चंद मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ वो है सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं किड्स एजुकेशन रेवोल्यूशन मिल के एक नेशनल कमेटी है जिसमें जो है मैं जब 9th क्लास में था तो मैं उसके लिए नेशनल कमेटी मेंबर हैदराबाद से भी सेलेक्ट हो गया था। जब हैदराबाद से मैं सेलेक्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मैं इसी तरीके से MUNs और डिबेट्स में भी जो है कॉन्सिक्यूटिवली पार्टिसिपेट कर चुका हूँ ग्रेस मॉडल स्कूल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2019-2020 में सिटी लेवल जो ग्रैंड फिनाले हुआ था डिबेट कंपटीशन का हल्ला बोल, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल ने 2 साल भी फर्स्ट प्राइज़ मारा है। और जो है ग्रेस मॉडल स्कूल की तरफ से हैदराबाद में आगा खान एकेडमी वहाँ पर भी जो है मॉडर्न नेशंस में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और ओकरेज इंटरनेशनल स्कूल में भी जो है पार्टिसिपेट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही जो है अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे जो है मौका दिया। यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज जो है आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में जो है उनके नोटिफिकेशंस जो है शुरू करते हैं, नोटिफिकेशंस जारी करते हैं। इसमें आप जो है उनकी वेबसाइट जो है www.uwc.organization पे जाकर जो है आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है और आप ज़रूर बज़रूर जब आप 10th में हैं तो अप्लाई कीजिए। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में इज्तिमाई अस्मत रेजी के केस की तहकीकात जारी हैं। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट से इस बात का सबूत नहीं मिलता कि यह वाक़या गांधी हॉस्पिटल में पेश आया हो। उन्होंने बताया कि मुतासरा खातून के मुतज़ाद बयानात से छानबीन में दुश्वारी पेश आ रही है। उसके लापता भी हो जाने से मामला और भी उलझ गया है। मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल के मुलाजिम ने 1 हफ्ते तक उसकी अस्मत रेजी की। कुकटपल्ली में एक हार्डवेयर शॉप में अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं निकलते हुए देखकर मकामी लोगों ने फायर इंजन को तलब किया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। सरदार सरवानी पापन्ना की 371वीं जयंती तकारीब आज शादनगर में मुनक्किद हुई। मकामी रुकन असम्बली वाई अंजया यादव और गौड़ संगम के कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। జన్మతోటే వాళ్ళు జన్మించి ఈ సంఘానికి సమాజానికి వాళ్ళు పోరాడి కృషి చేసి ఆ సమాజాన్ని రక్షిస్తారు కాబట్టి మీరంతా గతం నుంచి కూడా పూర్వం నుంచి కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు చాలా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ జ్యోతిరావు పూలే గారు కానీ అట్లా ఎంతోమంది మహాత్ములు కారణ జన్ములు వీళ్ళంతా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు పుట్టి సమాజాన్ని సమసమాజం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పోరాడి చాలా ఆ వర్గాలకు న్యాయం చేస్తారు కాబట్టి
సర్వర్ పాపన్న గౌడ్ గారిని మనం ఆలోచించి ఆయనను స్మరించుకొని ఆయన విధి విధానాలను మనం పాటించి ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా పోరాడి మన సమాజానికి సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు అందరూ పాటుపడాలని కోరుతున్నాను. रियासती गवर्नर टी सुल्तान की वालिदा कृष्णा कुमारी का चाशंबे को खांगी दवाखाने में देहांत होगा। वो 76 बरस की थी। उनकी नाश को आखिरी सुमात के लिए चेन्नई ले जाया गया। कृष्णा कुमारी सीनियर कांग्रेसी लीडर कुमारी आनंदन की बीवी थी। रियासती वज़रा केटी रामाराव, हरीश राव, सभी चंद्रा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सत्यावती राठौर, ए दाकर राव, इंदिराकरण रेड्डी, अजय कुमार, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट हिमा कोहली और कई आला अहदेदारों ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कृष्णा कुमारी के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। पुलिस बंजारा हिल ने एक मशहूर डॉक्टर को ब्लैकमेल करते हुए उससे 20 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश करने वाले एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि विशाखापट्टनम का राजू गौतम नायर, जो खुद को खम्मम पुलिस का इंस्पेक्टर जाहिर करता था, डॉक्टर वी किशन प्रसाद के ड्राइवर बी महेश से मिलकर एक साजिश रची और डॉक्टर को ब्लैकमेल करते हुए पहले 75 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। डॉक्टर ने कहा कि वो इतने पैसे देने से खासिर है, तो उसने 20 लाख रुपए पर आमदगी जाहिर की। पुलिस ने कल जाल बिछाकर गौतम नायर और ड्राइवर महेश को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो रोड नंबर 12 पर वाक़े पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास पैसे लेने पहुंचे थे। इंस्पेक्टर शिवा चंद्रन की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये महीना 14 तारीख को एक एक्सटॉर्शन केस रजिस्टर हुआ। डॉक्टर कृष्णा प्रसाद बोल के कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हो, उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च किया कि एक देवेंद्र बोल के एक इंस्पेक्टर हमारे घर को आके मेरे ऑफिस को आके बोला कि एक महेश बोल के एक आदमी का ने अब मियाँ बीवी का उनका और उनका मियाँ बीवी का सीक्रेट्स सब मिला। वो सीक्रेट्स वो सब बाहर नया ना बोले तो सोशल मीडिया में नया ना बोले तो 75 लाख रुपीज़ हमारे दिए तो मैं उसको माफ़ी करता हूँ बोल के उन्होंने आके बोले तो उनके कंप्लेंट के ऊपर बंजारिस में एक एक्सटॉर्शन केस रजिस्टर हुआ और उन्होंने डेट भी बोला कि हम 17 तारीख के दिन यहाँ को रोड नंबर 12 टेम्पल का नाम आए तो पैसे दिए तो मैं तुम्हारे ऐसे सीक्रेट का सब आपको वापस कर दूँ बोल के वो सिलसिला के ऊपर इंस्पेक्टर बंजारा एक टीम को फॉर्म करे। उदय और सुब्रमण्यम, संतोष और रंगया उनके मफ्ती में जाके वहाँ पर टेम्पल का ने आदमी आए तो उसको गिरफ्तार कर लिए और मफ्ती में देखे तो डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, नाम भी सब डुप्लीकेट लगा के कार को पुलिस खोल के स्टिकर लगा लेके आए तो उधर पुलिस वाले पकड़ लेके उसको कुबलाया तो उन्होंने सही बात बोला। एक महेश बोल के इसके पहले डॉक्टर का ने काम करता था ड्राइवर, उन्होंने 20 लाख रुपए ड्राइवर का लेके जाके तो वहाँ से अब्सकॉन्डिंग हुआ। वो महेश और दोनों नाटक खेले कि अपन डॉक्टर को डराए तो पैसे आते बोल के वो सिलसिले में ये फेक इंस्पेक्टर जैसा एक्ट करके डॉक्टर को डरा के पैसे खींचने के सिलसिले में पुलिस वाले दोनों को अरेस्ट करे और दोनों भी कबूल करे कि हम पैसे खींचने के लिए एक नाटक के लिए बोल के और इस सिलसिला में पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके आज अदालत में पेश कर। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 35,178 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,22,85,857 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 440 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक 4,32,519 अफराद फौत हो चुके हैं। यह मुसलसिल 52वां दिन था कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 50,000 से कम आए हैं। जो नई अमवात हुई उनमें 127 केरला में और 116 महाराष्ट्र में हुई हैं।